Good morning, dear students. As we have completed our chapter of English reader as well as good grammar, and we have done that story writing also. So today we will start our revision work, and we will revise reader book first. After that we will revise good grammar, and then story that we have done two story, then we will revise that also. If we will have get the time, then we will do some writing part more, but still first of all we will revise our all the reader work as well as the good grammar work. So these all will be your recorded video of revision work, so watch it carefully every day, and if you have any kind of pending work, then you can do these work from watching the video. So watch the video and learn the work as well. Chapter 1 to 6, total 12 chapter we have, and 1 to 6 we have done. We have revised also for essay 1 exam, and for essay 2 we will revise from chapter 7 to 12. So chapter 7, A Night Out, as we have read earlier, this is a story about the kids and their father mother, that they went at the night to enjoy themselves. So once again we will read the chapter. It was about 12 o'clock at night when Tom and Lucy got back home. They had gone out to enjoy themselves that night. Dad and Mom were also with them, but their sister Jenny was not with them. She was asleep when they went, so they went without her. They didn't want to wake her. रात के 12 बजे टॉम और लूसी जो हैं वो घर वापस आए, क्योंकि वो घर से बाहर गए हुए थे अपना एंजॉय करने के लिए. डैड और मम भी उनके साथ में थे, लेकिन उनकी सिस्टर जैनी उनके साथ नहीं थी, क्योंकि वो सो रही थी. और क्योंकि वो सो रही थी तो वो उसको उठाना नहीं चाहते थे, इसीलिए वो उसको छोड़ के घर पे चले गए थे अपने फादर और मदर के साथ. When they returned, the house was dark and quiet. Be very quiet, said their mom. Take care you don't wake Jenny or Grandpa. जब वो घर पे आए तो घर पे बहुत ज़्यादा डार्क और शांति थी. उनकी मदर ने उनको क्या बोला? बी वेरी क्वाइट, बिल्कुल क्वाइट रहें, ध्यान रखें कि जेनी और ग्रैंडपा जो हैं वो डिस्टर्ब ना हो, उठे नहीं. डैड क्लोज द डोर वेरी क्वाइटली, देन ही विस्पर्ड, यू टू must go to bed now. It's school in the morning. Little boys and girls should be fast asleep by this time of night. डैड ने बहुत आराम से डोर को क्लोज़ किया और फिर उन्होंने विस्पर का मतलब होता है ऐसे बहुत धीरे धीरे बोलना. अब तुम दोनों को भी बेड पे चले जाना चाहिए. इन द स्कूल, आपका स्कूल है मॉर्निंग में, और छोटे बच्चे जो हैं वो बहुत देर तक नहीं जागते हैं. टॉम एंड लूसी वर फीलिंग सैड फॉर जेनी. अब टॉम और लूसी को अपनी बहन जेनी के लिए बहुत बुरा फील हो रहा था. दे हैड नॉट टेकन हर अलॉन्ग, बट वट कुड दे डू? जेनी वॉज स्लीपिंग एट दैट टाइम. दे डिडंट वॉन्ट टू वेक हर. ग्रैंडपा हैड said that he would stay back to look after her. अब उनको अपनी सिस्टर के लिए बहुत बुरा लग रहा था, जेनी के लिए, बिकॉज वो उनको अपने साथ नहीं लेके गए, बिकॉज जेनी वॉज स्लीपिंग एट दैट टाइम, और वो उसको उठाना नहीं चाहते थे. तो घर पे कौन था? ग्रैंडपा थे उसकी टेक केयर के लिए. कम ऑन एंड गेट अप दो स्टेयर्स, सेड मॉम. क्लीन योर टीथ एंड डोंट रन द वाटर टू लाउडली. यू मस्ट वेक people up. You must not wake people up. Come on and get up the stairs. चलो और clean your teeth, brush करो, and don't run the water too loudly. जब water जो है उसको बहुत loudly run नहीं करना है आपको, बहुत slowly अब आप ये वर्क करेंगे, because जो grandpa और जेनी हैं they are sleeping. Tom and Lucy went up quietly. They did as they were told. They did not make any noise. उन्होंने कोई noise नहीं की. The two children were thinking of the wonderful evening they had spent.
First, they had been to a cafe. There they ate cake and drank coffee. Next, they went to a circus. The circus clowns made them laugh a lot. They threw chocolate cream at each other and fell about on the ground. जो दोनों बच्चे हैं वो उस वंडरफुल इवनिंग के बारे में सोच रहे थे जो उन्होंने स्पेंड की. सबसे पहले वो कहाँ गए? कैफ़े में. वहाँ पे उन्होंने केक और कॉफ़ी ली. नेक्स्ट दे वेंट टू अ सर्कस. फिर वो सर्कस में गए और सर्कस में क्या था? जोकर ने उनको बहुत ज़्यादा हंसाया. दे थ्रू चॉकलेट क्रीम एट ईच अदर एंड फेल अबाउट ऑन द ग्राउंड. वो चॉकलेट क्रीम एक दूसरे के ऊपर थ्रो कर रहे थे और ग्राउंड के ऊपर गिर रहे थे. देयर वर मैनी एनिमल्स एट द सर्कस बट द चिल्ड्रंस फेवरेट वॉज द एलिफेंट. वैसे तो वहाँ पे बहुत सारे एनिमल थे लेकिन चिल्ड्रन का फेवरेट कौन था? एलिफेंट. ही ड्रंक वाटर एंड देन ब्लू इट आउट ऑफ हिज ट्रंक एट द क्लाउड्स. उन्होंने वाटर को ड्रिंक किया और अपने ट्रंक से बाहर निकाला. टॉम एंड लूसी हैड नेवर सीन मम सो लाफ सो मच. उन्होंने अपनी मदर को इतना हंसते हुए पहले कभी नहीं देखा. आफ्टर द सर्कस डैड ड्रू दैम होम. ड्रू बेटा ड्राइव की सेकेंड फॉर्म है कि सर्कस के बाद वो लोग वापस घर आए. ऑन द वे दे स्टॉप्ड फॉर फिश एंड चिप्स. मम डिडंट वांट Mom didn't want the car to smell of fish, so they walked up and down the pavement, eating the hot food out of trays with their finger. जब वो घर वापस आ रहे थे तो उन्होंने एक जगह अपनी गाड़ी रोकी. वहाँ से उन्होंने फ़िश और चिप्स लिए. मॉम नहीं चाहती थी कि जो फ़िश की स्मेल है वो गाड़ी में हो, इसलिए वो पैदल चलते हुए पावमेंट पे उन्होंने वो चिप्स खाए. So today we will read the chapter till here and we will complete it in the next class. So read the chapter once again